और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं हिंडन एयरबेस से, जहां पर एयरफोर्स डे की भव्य तैयारियां की गई हैं। तमाम मेहमान वहां पर पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर के बाद वो नजारा आसमान से आपको नजर आएगा जो हर साल आप देखने के लिए बेचैन भी रहते हैं। और वो फाइटर प्लेन्स अपना दमखम, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। फाइटर प्लेन्स हमेशा की तरह एक बार फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार है। और जब ये फाइटर प्लेन जिसमें सुखोई है, जगुआर है, तेजस है, 89वां स्थापना दिवस है भारतीय वायुसेना का। The Sarang helicopter display, a team of the Indian Air Force. The first pair is in wineglass formation on this historic day of 89th Air Force Day. The team comprises 4 members who go by the call signs of Sarang 1 of the formation, flown by the commanding officer, Wing Commander Girish Komar. With a decade-plus experience as a display pilot, he has been one of the pioneers of Sarang team in becoming one of its kind in the world. The other aircraft are captained by Wing Commander Sridhar, Squadron Leader Veer Kumar and Wing Commander Niket Tiwari. And as we all know, modernization through indigenization is the outcome of a quest for operating indigenously built platforms and supporting self-reliance that has resulted in significant progress on various systems. Indian Air Force has always encouraged development of indigenous defense production capability and capacities. On this note, from your right, dedicated to indigenization and to our motherland, India, Sarang's coming in India formation. As they fly past in front of you, may I request you to cheer them up with a big round of applause, ladies and gentlemen. Now, as the team will prepare for the next maneuver, let me introduce you to the co-pilots of today. In Sarang 1 with the team leader, we have Squadron Leader Mahesh Pundir. In Sarang 2, we have Squadron Leader Manoj Manual. Squadron Leader Chandan Patnaik is the co-pilot of Sarang 3. And Wing Commander Gopi Krishna is in Sarang 4 as the co-pilot. This time, it is from your left. Keep looking at the aircraft. On the leader's command, there will be a change for something very special and very beautiful for all the August gathering present here this morning. That was a leader, and here it is, a princess cut marking the historic Air Force Day celebrations, ladies and gentlemen, from your left this time. Keep looking at the aircraft. You are in for a breathtaking surprise, ladies and gentlemen. And here we are standby. Here goes number 4. Pulled up, took a stall turn. And just a gentle reminder, as he's gonna fly past you, you can wish him, wave at him, and wish him a happy landings. I am sure that Sarang 4 is propagating the need of the hour, social distancing norms. Here, they are making a short exit, and they will be back soon in the arena with more thrill. तो ये तस्वीरें सीधे हिंडन एयरबेस से आपके सामने आसमान में उड़ते ये ध्रुव चिन्यूक अपाचे हेलीकॉप्टर आज करतब दिखा रहे हैं शानदार तरीके से। भव्य तैयारियां हमेशा की तरह। तो भारतीय वायुसेना का आज 89वां स्थापना दिवस, जिसकी तस्वीर आसमान में ये ताकत वायुसेना की, और तीनों चीफ सेना के इस वक्त मौजूद हैं। वायुसेना प्रमुख वहां पर मौजूद हैं, नौसेना प्रमुख और सेना प्रमुख वहां पर मौजूद हैं, और तमाम लोग जो आज फाइटर प्लेन्स इन हेलीकॉप्टर्स के करतब ताकत देखने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। और न्यूज 24 के माध्यम से आप घर बैठे इस वक्त ये नजारा आसमान से ताकत भरा देख पा रहे हैं। आपको मालूम है कि वायुसेना की स्थापना
8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और देश के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद इसमें तब्दीली हुई। वायुसेना के नाम में से रॉयल शब्द को हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया था। आज भारतीय वायुसेना के पास विमानों का विशाल बेड़ा है। एक से एक ताकतवर हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन्स मौजूद हैं, जिसे देखकर दुश्मन थर-थर कांपता है। बुरी नजर डालने से पहले उसको 1000 दफा सोचना पड़ता है, क्योंकि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है, बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। टेक्नोलॉजी से लैस ये तमाम फाइटर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स इस वक्त आपको दिखाई देंगे। आज एक एक तस्वीर सबसे पहले आपके सामने होगी। तो स्थापना दिवस के मौके पर आप देख ही रहे हैं, भारतीय वायुसेना की ताकत के बारे में जान रहे हैं। पहले जानिए भारतीय वायुसेना का इतिहास क्या है। वो लगातार न्यूज़ 24 आपको बता रहा है। 1 अप्रैल 1933 वो साल और वो अहम साल जब वायुसेना का गठन हुआ। पहला दस्ता जिसमें 6 IAF ट्रेंड ऑफिसर शामिल हुए और 19 हवाई सिपाहियों को भी इसमें शामिल किया गया था। तब से लेकर 1933 से लेकर आज 2021 की तस्वीर आप देख सकते हैं। झलक आसमान में उड़ते, करतब दिखाते फाइटर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहे। ताकत का एहसास हम भारतीयों को तो है, लेकिन दुश्मनों को बखूबी है कि आज भारत कितना ताकतवर हो गया है, भारत की सेना कितनी ताकतवर हो गई है। थॉमस डब्ल्यू एल्महर्स्ट भारतीय वायुसेना के पहले चीफ बने और थॉमस डब्ल्यू एल्महर्स्ट 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1950 तक इस पद पर बने रहे थे। बखूबी उन्होंने कमान संभाली थी। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम और दीप्तम है। इसे गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। वायुसेना ध्वज, वायुसेना निशान ये अलग नीले रंग का है, जिसके शुरुआती 1/4 भाग पे राष्ट्रीय ध्वज बना है और बीच के हिस्से में राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंगों अर्थात केसरिया, श्वेत और हरे रंग से बना एक वृत्त है। ये पूरी जानकारी न्यूज़ 24 लगातार आपको दिखा रहा है। एक बार फिर से आपको वायुसेना की ताकत, वायुसेना का जो ध्वज है उसका क्या महत्व है, ये जानने का आज फिर से एक बार आपको मौका मिल रहा है। तो ये हिंडन एयरबेस से, गाजियाबाद से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें तीनों सेना के प्रमुख वहां पर इस वक्त बैठे हुए हैं और आसमान में हेलीकॉप्टर ध्रुव, चिनूक, अपाचे उड़ान भरते हुए आपको सारंग नजर आ रहे हैं, करतब दिखाते हुए। और इस दिन की तैयारियां बहुत पहले से की जाती हैं और आज हर एक करतब जो दुश्मन के दांत खट्टे करेगा, उस ताकत का एहसास दिलाने के लिए एक बार फिर से आप देख रहे हैं ये फाइटर प्लेन्स आपको आसमान में उड़ते हुए नजर आएंगे। हिंडन एयरबेस पर तमाम ऑफिसर्स, चीफ, फैमिली और वहां पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। राफेल, सुखोई, तेजस, जगुआर, मिग-29 मिराज ने भी उड़ान भरी शानदार तरीके से। हिंडन एयरबेस पर प्रदर्शनी में शामिल फाइटर प्लेन डिनेट भी है वहां पर। और एक बार फिर से वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। देसी हेलीकॉप्टर है ध्रुव, चिनूक, अपाचे फ्लाई पास्ट में शामिल हुए हैं। वही नजारा इस वक्त आसमान से आप निहार भी रहे हैं। तो आज का दिन गौरव से भरा है, आज का दिन ताकत से भरा हुआ है। आज का दिन दुश्मनों को वो एहसास कराने का है कि देख लीजिए कि भारतीय सेना, वायुसेना कितनी ताकतवर हो चुकी है। अगर आप जमीन से भी प्रहार करेंगे तो भी हम तैयार हैं दुश्मनों को दांत खट्टे करने के लिए। CDS जनरल बिपिन रावत भी हिंडन एयरबेस पर इस वक्त मौजूद है और अगर आसमान की तरफ आपने आंख उठाकर भी देखा तो वहां पर भी आपकी खैर रही है और कई मौकों पर आपने देखा है कि इन फाइटर प्लेन्स ने लड़ाई में हिस्सा लिया है। कई फाइटर प्लेन्स जिस तरीके से उन्होंने आसमान में उड़ान भरी और बड़े से बड़े ऑपरेशन को सफल बनाया है। और हिंडन एयरबेस पर मेरे सहयोगी पवन मिश्रा इस वक्त मौजूद है। पवन, हम तो तस्वीर देख रहे हैं लेकिन आप वहां पर मौजूद हैं। अभी मैं देख रही हूँ कि हेलीकॉप्टर्स जो है उड़ान भर रहे हैं, करतब दिखा रहे हैं। आपकी नजर से दर्शक क्या देख पाए? On the soul lilting tune of Vande Mataram. पवन, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, अपना सवाल फिर से दोहराएं। पवन, दर्शक आपकी नजर से समझना चाह रहे हैं, आसमान में करतब दिखाते हेलीकॉप्टर, ये कौन सा हेलीकॉप्टर है और आगे क्या? बिल्कुल दिखाया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि 1971 में जो लड़ाई में भारत पाकिस्तान की बीच लड़ाई हुआ था, सैनिक हमारे शहीद हुए, श्रद्धांजलि यहाँ पर दिया गया तिरंगे के माध्यम से। साथ ही कुछ देर बाद जो है घंटी और राफेल की गर्जना जो है आसमान में सुनाई देगी, करतब दिखाई देगा। चिनूक हेलीकॉप्टर ने भी अपना यहाँ पर करतब यहाँ दिखाया।
पवन आप बोलते रहिए, हम सुन रहे हैं आपको। नेटवर्क इशू है, पवन से दोबारा संपर्क हम साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं इनसे नजर हटती नहीं। हेलीकॉप्टर आप आसमान में इनको करतब करते हुए इस वक्त देख भी पा रहे हैं और सभी की नजर इस वक्त आसमान की तरफ है, जिसमें